اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں امداد حسین ہاشمی جھنڈیر فرام جلال پور پیر والا آپ کے لیے جس ویڈیو کا میں ریویو لایا ہوں وہ ہے 20 مارچ۔ 20 مارچ کو شمس برج حمل میں 0 درجے اور 0 دقیقہ پر آ رہا ہے، تو اس سے تمام برجوں کی شروعات ہوتی ہے، ان کی تکثیر بنتی ہے، تو اسے اپنا سولر انگریس ان ایریز بھی کہتے ہیں اور اسے نوروز عالم بھی کہتے ہیں۔ اور 12 برجوں پر اس کے کیا اچھے اور کیا برے اثرات ہوتے ہیں اور کس برج کو یہ کہاں فائدہ یا نقصان دے گا، ہم اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ تو برج حمل کے خانہ نمبر 1 یعنی شخصیت حیثیت کے خانے میں آئے گا، تو ان کی شخصیت حیثیت اجاگر ہوگی، ان کے بگڑے کام بنیں گے، لوگ ان کے گرویدہ عاشق دیوانے ہوں گے، ان کی شخصیت حیثیت کا بول بالا ہوگا۔ ان کے جو ممکنہ مسائل ہیں، جلد بازی یا غصہ ان کو نقصان دے سکتا ہے، فیصلوں میں اگر ان صبر تحمل نہ کیا تو ان کو مسائل کا سامنا آ سکتا ہے۔ برج ثور کے خانہ نمبر 12 میں یہ جو نا اثرات ڈالے گا، تو خفیہ دشمن دفع ہوں گے، سازشیں ان کی ناکام ہوں گی، اخراجات کنٹرول ہوں گے، ماضی کے کیس دب جائیں گے اور ایمیگریشن کے تمام ممکنہ مسائل حل ہوں گے اور ان کی ابتدا تکثیر ہوگی۔ سایہ جادو کے اثرات بھی بند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ سایہ جادو کے اثرات کا گھر ہے 12 نمبر۔ تو جو اس کے ممکنہ نقصانات ہیں وہ یہ ہیں کہ اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، صحت اور نیند پر توجہ دینا بہت ضروری ہے ثور برج والوں کے لیے۔ تو برج جوزہ کے خانہ نمبر 11 پر لگنے سے دوست احباب ساتھ دیں گے، خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فوائد ملیں گے، اور جس کے علاوہ آپ کے جو خرید رکھا ہے، کوئی مال سٹور کر رکھا ہے، تو اس میں بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ اس کے جو ممکنہ مسائل ہیں، دوستوں کے ساتھ کئی ایک قسم کی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے دوستوں کے ساتھ قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں۔ سرطان برج کے خانہ نمبر 10 پر لگے گا، تو خانہ نمبر 10 پر لگنے سے ان کو کاروباری فوائد ملیں گے، کاروبار ان کا ٹاپ پر جا سکتا ہے، ورلڈ نمبر 1 بھی یہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ سورج آ کر پوری شعائیں دے گا اس میں حمل میں، تو کاروبار ہائی لیول پر چلا جاتا ہے، اور کاروبار کیسے سے نئے شروعات، نئی ترقی شروع ہوگی، نیا کاروبار کر سکتے ہیں، جاری کاروبار میں سرمایہ لگا سکتے ہیں، ممکنہ کاروباری مسائل بھی آپ حل کر سکتے ہیں۔ اسے نوروز عالم کہتے ہیں۔ یقین کرو یہ بہت اچھا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا بھی بہت اچھا وقت ہے، وہ میں نے ایک علیحدہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے۔ تو جوزہ برج والوں کے لیے جو ممکنہ بد اثرات ہیں وہ یہ ہیں۔ سرطان برج پر ہم بات کرتے ہیں، سرطان برج والوں کا کاروبار اوپر رہے گا، جو ان کو ممکنہ مسائل آ سکتے ہیں اس پر آپ توجہ دیں، تو کام کا دباؤ اور ذمہ داریاں ان کی بڑھ سکتی ہیں، ویسے کام کاروبار زبردست رہے گا۔ تو سرطان برج سے آگے کنورٹ ہوتے ہیں ہم برج اسد میں۔ برج اسد والوں کے خانہ نمبر 9 پر لگنے سے ان کی قسمت بلند رہے گی، بیرون ملک جانے کے راستے کھلیں گے، اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے لڑکے کامیاب نظر آتے ہیں، جو کوئی سکالرشپ کے لیے اپلائی کرے گا وہ بھی کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ ماں کی صحت درست ہوگی، حج زیارات اور مذہب میں دلچسپی ہوگی، تمام قانونی الجھنیں، چاہے جتنی بھی قانونی الجھنیں ہیں وہ سب سلجھ جائیں گے۔ تو یہ بہت اچھی حالت ہے قوس برج اپنا اسد برج والوں کے لیے۔ ان کے اسد برج والوں کو جو ممکنہ مسائل کا سامنا آ سکتا ہے، قانونی یا تعلیمی معاملات میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو اس لیے قانونی معاملات یا تعلیمی معاملات میں انہوں نے غفلت نہیں کرنی۔ باقی رہا برج اب سنبلہ، برج سنبلہ میں یہ اچھے اثرات یہ ہیں کہ برج سنبلہ کے یہ خانہ نمبر 8 پر لگنے سے برج سنبلہ والوں کی ڈوبی رقم واپس ہوگی، قرضہ کی حصولی وصولی ادائیگی آسان ہوگی،
माली जो धोखा हुआ था वो बाजियाब होगा, डूबी रकम भी मिल जाएगी, कारोबारी मामला तय हो जाएंगे, विरासत के जायदाद के मामलात आपके हक में होंगे, इंश्योरेंस क्लेम के मुकदमात भी आपके हक में होंगे, बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी। शुमला बुर्ज वालों, आपको मुमकिन मसाइल, जहनी दबाव और जज्बाती उतार चढ़ाव आपको आ सकता है, तो इसलिए आप कंट्रोल करना। तो चलिए चलते हैं बुर्ज मीजान की तरफ। मीजान बुर्ज वालों के मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर यह शुआएं भर देगा। मियाँ बीवी के ताल्लुकात हाई लेवल पर रहेंगे। अगर नौबत लड़ाई है, तलाक तक पहुंच चुकी है, तो वो राजीनामा हो जाएंगे। जिनकी शादियां ताहाल नहीं उनकी शादियां हो जाएंगी। पूरा महीना है 20 मार्च से, ऐसा समझ एक पूरा एक माह, तो बड़ा लंबा एरिया है। तो मीजान बुर्ज वालों की जिनकी शादियां नहीं उनकी शादियां हो जाएंगी। दूसरी शादी वाले भी कामयाब नजर आते हैं। शिराकती कारोबार और शिराकती मुआहदात ये तय पा जाएंगे। जब मसलन कुछ अपना तरस रहा था कि फलां के साथ मेरा मुआहदा हो जाए, तो कारोबारी शिराकत तो हो जाएगा। और जिनकी शादियां भी ताहाल नहीं उनकी शादियां हो जाएगी। तो इनको जो मीजान बुर्ज वाले, इनको जो मुमकिन मसाइल है, पार्टनरशिप में इख्तलाफ हो सकता है। तो पार्टनरशिप में इश्तराक शिराकती कारोबार में आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, वरना ये इसमें फायदे बहुत ज्यादा हैं। तो अकरब बुर्ज वालों के खाना नंबर 6 पर लगने से अकरब बुर्ज वाले जिस किस्म के बीमार हैं, इनको बदरिया सहर जादू पिछले कई सालों से बीमार किया गया। इनको ईएनटी का मसला, अपना स्टोमिक का मसला और जोड़ों का दर्द और टीबी वगैरह, यानी स्टोमिक का मसला, खांसी आम है अकरब में, तो ये खत्म हो जाएगी। अब इनको नवीद है कि ये सेहत याब हो जाएंगे। इसके अलावा मुलाजमती तरक्की मिलेगी। सरकारी नौकरी अगर चाहते हैं या तो मिलेगी। सरकारी नौकरी में तबादला भी मुमकिन है। इनको अफसरान बाला, हकाम बाला भी इनके काम से खुश हैं और इनको अच्छे इनामात देते हुए नजर आते हैं। और इनको जो मुमकिन मसाइल का सामना आ सकता है, काम का दबाव और थकन बढ़ सकती है। जो हकाम बाला, अफसरान बाला, इनको वो काम ज्यादा दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम कौस बुर्ज की तरफ। तो कौस बुर्ज वालों के मोहब्बत इनका साथ देगी। मंगनी इनकी उसके साथ हो सकती है। मोहब्बत से सुकून मिलेगा। जच्चा बच्चा को कोई खतरा नहीं। हामला खवातीन को भी कोई खतरा नहीं। जवान औलाद के मसाइल जाब मंगनी शादी हाल होंगे। आपकी किस्मत बुलंद रहेगी और आपको कोई मुफ्त दौलत, कोई बड़ा खजाना मिल सकता है। ये पूरा महीना आपके लिए है। इसके लिए जो मुमकिन मसाइल हैं, जज्बाती फैसले नुकसान दे सकते हैं। ये कौस बुर्ज वाले, मैं भी कौस हूं, जज्बाती तो ये होते हैं, खामखा गुस्सा करते हैं। अब आपका क्या, लेकिन नहीं, इनका है कुछ, हर मामले में टांग अड़ाएंगे। जहां कोई किसी को मार रहा है या कोई किसी के इंसल्ट कर रहा है, जाकर डुबकी लगा देंगे, और चाहे जूते पड़ जाए, गोली लग जाए या पैसा ज़ाय हो जाए, ये नहीं छोड़ेंगे कौस बुर्ज वाले। तो इसलिए ये जज्बाती फैसले से दूर रहे, तो इनके लिए ये टाइम प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआन दादा में और किस्मत की बुलंदी का बेहतरीन टाइम है। मंगनी जहां चाहते हैं हो सकती है। अगले बुर्ज जद्दी बुर्ज, जद्दी वाले के खाना नंबर 4 पर लगने से खानदान में जो शैतान लोग थे अब दब जाएंगे, उनकी जगह अच्छे लोग आ जाएंगे, खानदान फले फूलेगा। नई सवारी की खरीद मुमकिन है। पुरानी सवारी जो चोरी हो गई थी बाजियाब हो सकती है। अगर खराब है तो बनवा सकते हो। जमीन जायदाद की खरीद और फरोख्त आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यकीन करो, साल का ये बेहतरीन हिस्सा है, क्योंकि साल की बेहतरीन लम्हा भी इस नौरोज आलम में है। जब ये 7:47 पर लगेगा, तो ये जो है ना, बहुत अच्छा टाइम है। इसमें दुआ की कबूलियत की मैंने वीडियो लगाई हुई है, वो देख रहे हो। तो जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त बहुत अच्छी है। किराए के मकान से ज़ाती मकान में आ सकते हो। अगर मकान ट्रांसफर करना है तो इस वक्त दौरान सामान लगाओ, अपने मकान में नया लिया है, तो ये बहुत अच्छा वक्त है। दिल्लू बुर्ज के खाना नंबर 3 पर लगने से दिल्लू बुर्ज वालों का हादसा नहीं होगा। दिल्लू बुर्ज वालों के अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई साथ देंगे और अंदरून वक्त सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफरों में कामयाब है। और छोटी तालीम, इब्तदाई तालीम और इब्तदाई हुनर हासिल करने वाले लड़के भी कामयाब हैं। इसमें अपना दिल्लू बुर्ज वालों को जो मुमकिन मसाइल का सामना आ सकता है, जल्दबाजी में बात करने से इख्तिलाफ हो सकता है। आप मजहबी, सियासी और रूहानी गुफ्तगू ना करें तो बेहतर है। तो बुर्ज हौत वालों के
दौलत के खाने पर लगने से दौलत बुलंद होगी, पैसे की आमद होगी, कोई बड़ा पैसा मिल सकता है, ज़रा आमदनी फले फूलेंगे और आप काफ़ी पैसा कमाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इनको जो मुमकिन मसाइल का सामना है, गैर ज़रूरी खर्च और माली धोखा हो सकता है, क्योंकि पैसा जब इनके पास ज़्यादा आएगा तो ज़ाहिर है ये जो है ना लोग इनके साथ जलते हुए नजर आते हैं। ये है नौरोज आलम। नौरोज आलम के वक्त शम्स का बुर्ज हमल में दाखिल होना अमूमी तौर पर नई शुरुआत, नई तमन्नाई, नई तब्दीली की अलामत समझा जाता है। आग के बुर्जों में हमल असद कौस के लिए बहुत ज्यादा मस्बत है, जबकि बुर्जों के लिए दरमियाना और महतात वाले असरात रखता है। अगर आप इस दौरान तहवील शम्स में, इसे नौरोज आलम कहते हैं, आप या फतह 499 मरतबा पढ़ें, नस्र मिनल्लाहि व फतह करीब 1333 बार पढ़ें और सदका गंदम का दें तो ये बहुत अच्छा है। यकीन करो ये नौरोज आलम ऐसे समझ लो आप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, यह आपको बहुत फायदा देगा। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान, आपके ताबे कुल जहान, मेरे मालिक, बीमार को शफा, मुसाफिर को मंजिल, बेरोजगार को रोजगार अता फरमा दे रसूल अल्लाह के सदके। या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को तरक्की अता फरमा दे रसूल अल्लाह के सदके, माह रमजान के सदके। या अल्लाह हमारे हल्काए सियासत को भी जो है ना चमका दे रसूल अल्लाह के सदके। या अल्लाह हर जो हमारा बड़ा है, जो हमारे सर पर बैठा है और मुल्क को संभाल रहा है, या अल्लाह उसमें उसकी इज्जत अजमत शान में बुलंदी अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह हमारी फौज की खैर फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके, जिसकी बदौलत या अल्लाह तू नेगवान है और आपके बाद हमारी ये जो है ना जवान नेगवान है। अल्लाह इनको सलामत रखे। या अल्लाह बीमार को शफा, मुसाफिर को मंजिल, बेरोजगार को अता फरमा दे, रोजगार अता फरमा दे। हर मुसलमान के रिज़्क़, माल औलाद, फसलात में बरकत अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह जो हम मांग रहे हैं वो अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके, जो हम अपनी कम अक्ल की वजह से नहीं मांग सकते वो अल्लाह या अल्लाह अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह स्पेशल दुआ है हर मुसलमान को, चाहे मुसलमान है या कोई इंसान है, उसका प्यार उसको नसीब फरमा दे रसूल अल्लाह के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।